संग तो बहुत बढ़िया उठाया आज का, और आई थिंक ये बहुत ही अहम है, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत जरूरी है सबके लिए। और ये चाहे पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे हो, कॉर्पोरेट लेवल पे हो, एक स्टार्टअप्स के लिए हो, तो सभी के लिए तो बहुत जरूरी है। आई थिंक ये बेसिक लर्निंग्स और बेसिक अवेयरनेस एजुकेशन की जरूरत है। मुझे लगता है बहुत सारे जो टेक्नोक्रेट्स पर्टिकुलरली आते हैं, सो उनके लिए तो बहुत जरूरी है ऐसी चीजें। जितनी बार सीखेंगे, जितनी बार आपसे टिप्स लेंगे, उतनी अच्छा है। और मैं तो समझता हूँ कि हम लोग मतलब बड़े लकी हैं कि आप जैसे लोग हमारे मतलब बिल्कुल अवेलेबल है। आप लोग हमारे पास, एक्सेसिबिलिटी है हमारी, आपकी हमारे से। सो कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग आपसे जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एजुकेशन की बात है सर, अवेयरनेस की बात है। जी सर। और मुझे लगता है बहुत फायदे की चीज होगी। बाकी तो आपका एक्सपीरियंस है, आप बताएंगे सारी चीजें सर। जी सर, एक छोटी सी कोशिश है सर जो हम लोग रेगुलर करते आए हैं, और आज आपका भी इनपुट मिलेगा हमें इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन रहेगी सबके लिए। और सुनील जी, बड़ी बात है कि सर ने बड़े शॉर्ट नोटिस में हमारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया है, और मैडम काफी बिजी रहती हैं, उनको भी पकड़ लिया है। तो दो ऐसे लोग हमारे साथ आज हैं कि जिनके गाइडेंस में हम ये कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी और बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी तो हम लोग करते ही रहते हैं, बट इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने आप में एक बड़ा निगम है, और उनका अगर सपोर्ट हमारे साथ में है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। जी सर, परफेक्ट। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मतलब हजारों हजारों लाखों लोग इससे फायदा लें, और इसको और प्रमोट भी करेंगे हम लोग। और बाकी तो एक बार आपका डिजिटल फुटप्रिंट हो जाएगा तो लोग अपने आप ही एक्सेस करेंगे। Grow MSME, I warmly welcome you to our webinar, Smart Financial Management, Cash Flow and Cost Control Strategy, organized in the collaboration with the Indian Industry Association, IIA Delhi chapter. Before we begin, a quick instructions for all. Please keep your mic on mute during the presentations. You may ask your question through the chat box anytime. The question and answer session will be held after each speaker finishes. This session has been curated with one clear purpose: to equip MSME with practical, actionable financial tools that can help them operate with stability, confidence, and sustainable growth. In today's competitive landscape, cash flow is not just a financial metric, it's a oxygen for every business. Cost control is not cost cutting, it's a strategic optimization. And financial planning is not optional, it's a survival skill. We are honored to have highly respected industry leaders with us today. Dr. Mamta Mani Priyadarshini, Chairperson, IIA Delhi Chapter. Mr. Ashok Jha, Founder, Grow MSME. Dr. L.K. Pandey, CEC Member, IIA, and previous Chairperson, Delhi Chapter, IIA. And CA H.K. Gupta ji, Co-Founder, Grow MSME. Each of them will share insights that have helped hundreds of business gain financial strength, manage risk, and improve profitability. Now, what we expected from participants. To ensure you gain maximum value from the webinar, I request stay attentive and take notes of strategy shared by the speakers. Actively participate in the Q&A session. Reflect on your financial practices and identify immediate improvements. Share today's learning with your teams and encourage fellow MSMEs to join similar capacity building programs. Your involvement will shape how much this session benefits your business. Now I invite Dr. Mamta Mani Priyadarshini. It's my honor to invite Dr. Mamta Mani Priyadarshini, Chairperson IIA Delhi Chapter, a strong advocate of MSME empowerment, to deliver the welcome speech. Ma'am, now the screen is yours. Thank you, Sunil ji. Good afternoon, all the eminent guests and the speakers. सबको मेरी तरफ से बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन। Myself Dr. Mamta Mani Priyadarshini, जैसे इन्होंने कहा कि I'm a state chairperson of Indian Industry Association, which is an apex body of around more than 14,500 MSME members. Now, when we are talking about the smart financial management,
इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ IIA की तरफ से, जो हमारे दिल्ली चैप्टर की तरफ से अशोक झा जी का, जो हमारे CA को-फाउंडर का, और जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का है, कि MSME का, जैसे सुनील जी ने कहा कि इट्स अ ऑक्सीजन फॉर ऑल द MSME, जो कैश फ्लो है, तो उसके लिए कैसे उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। एक्चुअली MSME का जो स्ट्रगल है, बीइंग अ पार्ट ऑफ MSME, और हमारी भी अपनी MSME है, हमारा स्ट्रगल है कि वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फोकसिंग ऑन द सेल्स। हम लोग सेल्स बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना हो, और एवरीडे कई बार ऐसा आता है कि हम लोग एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, जिसके कारण हमें बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, या कई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते। इसीलिए MSME के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्मार्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है। और ये जैसे डॉक्टर पांडे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को 15 डेज में, या जैसे इन्होंने अशोक झा जी ने अभी इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने, कि हमेशा लोगों को, MSME को इंसाइटफुल नॉलेज लेने की जरूरत है कि हम लोग कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्मार्ट कैश फ्लो कैसे कर सकते हैं, जिसके कारण इन फ्यूचर हमारे पास जो है फाइनेंशियल बर्डन ना हो, हमें कंस्टेंट ना हो, और लोन्स की तरफ जाना ना पड़े। तो डे टू डे कुछ एक्टिविटीज है, कैसे प्लान करना है, कैसे सिर्फ स्प्रेडशीट्स और इनवॉइसेस के अलावे हम लोग कैसे फाइनेंशियल अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उसको स्मार्ट उसमें लेके जा सकते हैं, इसके लिए इस तरह के सेमिनार्स की बहुत ज़रूरत है। और मैं भी पर्सनली बीइंग अ MSME ओनर, मैं भी चाहती हूँ कि इस तरह के सेमिनार्स को मैं भी अटेंड करूँ, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस तरह के इनिशिएटिव को। और डेफिनेटली मैं ये जो नॉलेजफुल जो सेशन है, उसमें मैं भी पार्ट ले, मतलब हमेशा जब भी होगा, तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे MSME के जितने भी लोग हैं जो IIA दिल्ली चैप्टर से हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग प्लीज इसमें आइए और इस तरह इससे नॉलेज गेन करिए, जिससे जो हमारा विजन एंड मिशन है IIA का, कि हम लोग MSME को कैसे हैंड होल्डिंग करें, और कैसे उनको प्रॉफिटेबल वेंचर्स की तरफ लेके जाए, हमारा विकसित भारत में क्या योगदान हो, उसके लिए हम लोगों को इस तरह के सेमिनार्स को अटेंड करने की और इसको सीखने की बहुत जरूरत है। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ और आप लोगों का स्वागत करती हूँ। एंड माइक इज योर्स। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your insightful and encouraging words. Your support is truly valuable for the MSME ecosystem. Now it's time to moving towards technical sessions. For this, I would invite Mr. Ashok Jha. Our next speaker is someone who has trained and mentored thousands of MSMEs on financial literacy and business planning. He is a founder of Grow MSME, will speak on cash flow management, one of the most important lifeline for any MSME. Sir, we warmly invite you to begin this session. Thank you. नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत अभिवादन कि आप सब इस सेमिनार में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हम लोग इसको हर महीने कुछ न कुछ, तो मैडम ने कहा कि हम किसी समस्या को लेकर सामने आते हैं, समाधान को लेकर आते हैं, और आप सबका कंट्रीब्यूशन मिलता रहा तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे इसमें। और मेरे जो सोर्स है इंस्पिरेशन का, मेरे कलीग गुप्ता सर हैं, सुनील जी हैं, जिनके बदौलत मैं इस सबको लेकर सामने आता हूँ। चलिए हम अब समय ज्यादा ना लेते हुए मैं सीधे से बात आता हूँ कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। कैश फ्लो, आप समझते हैं कि कैश का फ्लो बेसिकली, अगर बेसिक वर्ड में हम लोग लें तो वो होता है कैश फ्लो, कि कैश का फ्लो होना। तो आज का जो ये टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है, कि स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो एंड कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, जो हमने नाम दिया है इसका। और ये अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज में आप हैं, तो जिसमें भी हों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बिजनेस के लिए। आप अगर इसको समझते हैं तो मुझे समझ लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही फायदे की बात होगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कैश फ्लो की, तो अक्सर हम लोग देखते हैं, एज ए प्रोफेशनल हम लोग देख रहे होते हैं कि बिजनेसमैन के पास में उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, उसका सेल्स बढ़ रहा होता है, उसका बिजनेस बड़ा हो रहा होता है, लेकिन ये देखने में आता है कि वो अपने वेंडर का पैसा नहीं दे पा रहा है, वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पा रहा है, अपने डे टू डे खर्चे के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आखिर कारण क्या है? एक्चुअल में यही कारण है
कैश फ्लो का। जो कैश फ्लो की कमी से जूझ रहा है, वो बिजनेस में प्रॉफिट होने के बावजूद भी, उसका सेल्स बढ़ने के बावजूद भी उसके पास पैसे नहीं है। मतलब साफ है कि उसकी बुक्स में तो पैसे हैं, लेकिन उसके हाथ में, उसके जेब में, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर वो कैश फ्लो को मैनेज करना सीख जाता है ठीक से, तो इन समस्याओं से वो पार पा सकता है। तो कैश फ्लो का मतलब अगर साफ साफ बोलूं तो पैसा कितना आ रहा है एक टाइम फ्रेम में, एक महीने में, और कितना जा रहा है, यही आपका असली कैश होता है जो आपके पास होता है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट और कैश फ्लो में फर्क होता है। प्रॉफिट तो रेवेन्यू में से अगर आपने अपनी अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, एवरी एक्सपेंसेस को निकाल दिया तो आपका प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन कैश फ्लो क्या होता है कि जो एक्चुअल आपका इनफ्लोज है, जो पैसा आपके पास आता है और जो पैसा आपका जाता है, उसका डिफरेंसेस जो होता है वो है आपका कैश फ्लो। मतलब अगर आपके पास लाख रुपए आ रहा है और आपकी देनदारी 80,000 की उस महीने की है, तो आप समझ लीजिए कि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव में है। अगर लाख रुपए आ रहा है और देनदारी आपको 1,20,000 की है, तो आप 20,000 आपका कैश फ्लो निगेटिव में जा रहा है। आप दूसरे महीने उस पर डिपेंड होते हैं कि मैं अगली बार पे कर दूंगा, अपने जो देनदारी है उसको पूरा कर दूंगा। तो प्रॉफिट हम जाकर के खास करके साल में एक बार देखते हैं, लेकिन कैश फ्लो हमें हर महीने, हर समय देखना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आज का टॉपिक जो है इतना महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ये समझेंगे कि ये कैश फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है जो हमने आज दिया है, प्लस जो एमएसएमई है वो किस तरह से जूझते हैं और कैसे उससे पार पा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जो गुप्ता सर कवर करेंगे, वो ये है कि कैसे वो कैश फ्लो को और अपने कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, कहाँ कहाँ लीकेज को बंद करेंगे ताकि उनका कैश फ्लो ठीक रहेगा, उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा होगा और बिना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके तो सब कर सकते हैं और आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो हमने इस टॉपिक लेने का कारण ये रहा है कि हम लोग जो प्रोफेशनल है, हमने अक्सर देखा है कि लोगों के बहुत सारे बिजनेस को डूबने का, बंद होने का कारण उसका प्रॉफिट नहीं होता है, उसका सेल्स नहीं होता है, उसका कैश फ्लो होता है। यानी अगर कैश फ्लो में प्रॉब्लम है तो मार्केट में रेपुटेशन खत्म हो जाता है उसका, उसके जो वेंडर है उसको सामान देना बंद कर देते हैं, उसके एम्प्लॉई जॉब छोड़ के जाने लगते हैं और वो खुद भी अपने डे टू डे एक्टिविटीज को उसको बर्बाद नहीं कर पाता, इसलिए परेशान हो जाता है। तो ये कारण था हमने इस लेने का इस टॉपिक को। तो मतलब साफ साफ है कि अक्सर बिजनेस, अगर मैं सार करूं तो कहूं कि अक्सर बिजनेस इसलिए बंद नहीं होते कि मुनाफा कम है, बल्कि इसलिए बंद होते हैं कि पैसा समय पर नहीं आ रहा है। कर्मचारी का वेतन, किराया, कच्चा माल, ये सब रोजाना के खर्चे हैं जो इसके लिए कैश चाहिए आपको। अगर कैश साइकिल आपका रुक गया, आपका सीसीसी कैश कन्वर्जन साइकिल आपका गड़बड़ हो गया, तो बिजनेस आपका डगमगा जाएगा, बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। और खास करके ज्यादातर ये छोटे एमएसएमई के साथ हम अक्सर देखने को मिलता है। उलझ जाता है, डेट में उलझ जाता है, लोन के बाद लोन लेता है, उलझ जाता है, क्योंकि आपका कॉस्ट दिन पर दिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप अपने प्राइसेस को फ्रीक्वेंटली इंक्रीज नहीं कर सकते। कच्चा माल हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, लेबर हुआ, सब महंगा होता रहता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप एमएसएमई कोई कीमत बार बार बढ़ा सके, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि आप अंदर के खर्चों पे कंट्रोल करिए, जो सर कवर करेंगे, ताकि आपका कैश फ्लो बना रहे और आपका बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। उसके अलावा अगर मैं कहूं कि कॉस्ट कंट्रोल आपको एक प्रॉफिट भी देता है, जो सर कवर करेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल जो आप करते हैं, तो कॉस्ट कंट्रोल करने से भी आपको 5-10% का प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ने लगता है, लीकेज आप जब बंद करते हैं। तो ये सब कारण था। उसके अलावा अगर मैं कहूं
तो स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इस क्राइसिस से सरवाइव करने की एक टूल देता है। आपका मार्केट स्लो डाउन है, पेमेंट सप्लाई में दिखते हैं, जो अक्सर एमएसएमई की रोज चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तो जिस बिजनेस का कैश मैनेजमेंट अच्छा होता है वो इस तरह से मुश्किल के घड़ी में भी टिक पाता है। मतलब साफ है कि अगर आपका कैश फ्लो ठीक है तो आप स्ट्रांग हैं। आप चाहें तो अपने बल्क में अपने रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, वहां नेगोशिएट कर सकते हैं, बड़ा ऑर्डर ले सकते हैं, अपने स्किल्ड मैन पावर ले सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, नहीं आप नए बाजार में एक्सपेंड कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके कैश फ्लो पे। अगर कैश फ्लो नहीं है तो आपके रास्ते में बड़े सारे रुकावटें आ जाएंगी और आप चाह के भी आपके पास अच्छा एक आइडिया होने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे सुनील जी ने कहा कि कैश फ्लो आपके बिजनेस का ऑक्सीजन है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। और मैं कहूंगा कि जो सर कवर करेंगे कॉस्ट कंट्रोल को, मैं बोलता हूं कि आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग है, आपके बिजनेस को सही दिशा में लेके जाता है। तो अब सवाल है कि एमएसएमई को दिक्कत कहाँ आती है, क्या होती है, नॉर्मल दिक्कत क्या होती है? तो पहली दिक्कत जो दिखाई पड़ता है, जो सबको सामने दिखाई पड़ता है, वो है लेट पेमेंट। यानी माल तो सप्लाई कर देता है लेकिन उसको समय से पैसा नहीं मिलता है। उसका 30 दिन का अगर मिलने वाला है तो वो 60 दिन 90 दिन तक पहुंच जाता है पैसे का, और रॉ मटेरियल का पैसा उसको देना पड़ता है अपफ्रंट। कई बार ईएमआई जो लग रही होती है वो लग रही होती है, वो उसी डेट में लगेगी, और जो भी खर्चे हैं वो होना है उस टाइम में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक एमएसएमई को देखना पड़ता है, जूझना पड़ता है इस प्रॉब्लम से। अब सवाल है कि इसको कैसे किया जाए। तो मैं शॉर्ट में अगर कहूं तो मैं कहूँ कि सबसे पहले तो अपना ये सीसीसी जिसको मैं बोलता हूँ, कैश कन्वर्जन साइकिल को कम करिए। मतलब आप माल दिया आपने तो उसका पैसा जल्दी से जल्दी रिटर्न हो जाए आपके पास। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप डिस्काउंट की बात भी कर सकते हैं कि ऐसा कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरे को अपफ्रंट पैसा दे दो। तो हो सकता है कि आप जो काम शुरू करें उसमें आप ऐसा बोलें कि भाई मैं 10% अपफ्रंट लेता हूँ, 20% काम शुरू होता है तब लेता हूँ, बाकी के मैं काम खत्म होने के बाद दे लूंगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप अपने पैसे के लिए फॉलो अप भी कर सकते हैं। नॉर्मली कर सकते हैं, क्या करना ही चाहिए। नॉर्मली हमें उसके लिए स्पेशली एक टीम रखनी चाहिए जो फॉलो अप कर सके। उसके अलावा मेरा मानना है कई बार कि आप ऐसा प्रोडक्ट को भी लेके आइए, अपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करिए। क्योंकि लोग अक्सर हमसे कहते हैं कि सर हमारे बिजनेस में तो बिना क्रेडिट के चलता ही नहीं है, उधार देना ही पड़ता है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, वो तो ठीक है, आप उसके बगैर धंधा नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो ऐसा करिए अपने प्रोडक्ट में, डिफरेंशिएट लाइए ताकि आपको लोग एडवांस देके भी जाए। मैं कहता हूँ कि क्या हम लोग कई बार ऐसे सर्विसेज नहीं लेते हैं जहां पे हमें एडवांस देना पड़ता है? होता है ऐसा। तो अगर हमारे प्रोडक्ट में इस तरह की है तो हम शायद उनसे एडवांस भी ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं आपको डेल का। हम जो पहले डेल लेने गए शॉप पे, देखा हमने कि पहले कि वो कहता है कि आप पहले पैसा इतना जमा करिए और बताइए कि क्या आपका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या क्या आपको देना है इसमें। तो पहले जो डेल या कोई कंप्यूटर की लैपटॉप की कंप्यूटर की कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल देती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने माल लेता है, कहीं पे रखता है, बिकता है, फिर बिकने के बाद पैसा आता है, 2-2.5-3 महीने का साइकिल बन जाता है। उसने कहा कि नहीं, आप मुझे ऑर्डर दीजिए कि क्या कॉन्फ़िगर करना है आपके लैपटॉप में, और तब हम आपको लैपटॉप उसको कॉन्फ़िगर करके भेजेंगे 21 दिन के बाद। तो आप देखिए ना, 21 दिन पहले उसके पास में वो पैसा आ गया है। तो क्या हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं अपने बिजनेस में? क्या कुछ हम डिफरेंशिएट ऐसा कर सकते हैं कि लोग हमें एडवांस दें? या क्या हम ऐसे तरीके निकाल सकते हैं कि हमें जो क्रेडिट, जो हम सामान लेके आ रहे हैं रॉ मटेरियल, वो हमें क्रेडिट पे मिले लेकिन हमारे को लोग कैश देके खरीद ले आ सके? अगर ऐसा हमने कुछ किया तो हम अपने कैश फ्लो को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम फॉलो अप बनाएं। कम से कम सेल्स वालों को ना लगा दे कलेक्शन में, कलेक्शन के लिए अलग से लोगों को रखें, बिकॉज सेल्स वाले
कई बार हम लोग कई चीजें बेचने के चक्कर में बोल के चले आते हैं कि हाँ रख लो पैसे, तो बाद में मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि सेल्स करना होता है। बट अगर कलेक्शन को लगाएंगे तो शायद आपका पैसा जल्दी रिकवर हो जाए। और इस तरह से आपको चाहिए कि आपका ये 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन वाला जो साइकिल है, वो जितना कम कर सकते हैं, आपके कैश फ्लो को वो और मजबूत करेगा। मतलब दूसरा है कि आप अपने 30 दिन का ना बना लीजिए कि क्या पैसा आने वाला है, कितना पैसा आपको पे करना है, कितना पैसा जाने वाला है, तो आपको पता जाएगा कि हमारे को कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है। अदरवाइज हर महीने के अंत में जाकर के आप परेशान होंगे कि 7 तारीख को या 5 तारीख को सैलरी देनी है, आप कहां से दें, कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेंट्री की बात हम करते हैं। इन्वेंट्री भी हमारा एक तरह से कैसी है, जो स्टॉक में हमारा गोदाम में पड़ा होता है ना, एक्चुअल में हमारा पैसा वहां सोया होता है। तो इन्वेंट्री को ऐसे मैनेज करिए कि माल आया और निकल गया, या ऐसी इन्वेंट्री जो नहीं बिक रही है, जो नहीं है, उसका लेकर के हम ना रखें उसमें। मतलब स्लो मूविंग स्टॉक को जल्दी क्लियर करिए। सीजनल माल को रख करके स्टॉक में अपने पैसे को मत फंसाइए। कोई ऐसा कॉम्बो ऑफर लगाइए कि आपका जो स्टॉक है निकल जाए। अगर स्टॉक निकल गया तो वो पैसा आपके पास में आएगा। उसके अलावा मैं कहूंगा कि इमरजेंसी कैश बफर आप रखिए, ताकि आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। कई लोग हमारे को बोलते हैं कि अपने जो सेल का 1% आप कहीं और डाल दो, रख दो, ताकि आपको काम आएगा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा हम बैंक से आते हैं तो मैं लास्ट में बैंक की बात करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप कैश फ्लो जब टाइट होगा तभी आप बैंक के पास आते हैं। और कई बार मैंने ऐसे देखा है लोगों को कि उनके पैसे से, बैंक के पैसे से, उनके ओडी से दूसरे जने का बिजनेस चल रहा होता है। वो ओडी खर्च कर रहे होते हैं, उधार पे माल दे रहे होते हैं। लेकिन ये भी जरूरत है, तो आप जब ऐसा लगे कि जरूरत है इस तरह की, तो आप ओडी सीसी बैंक से लीजिए, लेकिन डेट के चक्कर में मत फंसिए। आपको लगता है कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग का भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में, इनवॉइस डिस्काउंट करा लीजिए। सप्लायर से क्रेडिट लीजिए। आप जो बिल भेजते हैं उनको वो ऐसा करिए कि अलग अलग तरह के उनके मेथड दीजिए, कि ताकि पैसा उनको बहाना करने का मौका ना मिले। उसके अकाउंट डिपार्टमेंट में अपनी थोड़ी सी जगह बना लीजिए, ताकि पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो ये बेसिकली आइडियाज है जहां पे आप अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, और कैश फ्लो को अपना हिसाब से आप अपने बिजनेस के लिए ठीक कर सकते हैं। सुनील जी, मैंने अपनी टॉपिक को कवर किया, अब इसके बाद आगे आपकी तरफ मुड़ता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Ashok sir. We will now take a few questions from the participants. Participants, please, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो अशोक जी यही हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको भी कुछ लगा हो तो सुनिए जी, तो आप मेरे से। हाँ सर, मैं रेगुलर जैसे आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, सर्वे करता रहता हूँ, तो मेरे पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कहें तो मैं वो टेकअप कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, बराबर। सर, what are the early signs of cash flow? What are the early signs of cash flow troubles MSME should watch for? ठीक है, मैं समझ गया। एक्चुअल में ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जब तक आपको सिम्टम समझ नहीं आएगा कि बुखार आने का क्या सिम्टम है, तो आप बुखार का इलाज कैसे करेंगे, बात भी सही। तो मैं कहता हूं कि जब एक एमएसएमई को अपने सप्लायर को पैसा पे करने में देर होने लगे, नंबर 1 कुछ चेकलिस्ट बना लीजिए अपने लाइफ में कैसा हो रहा है, तो या फिर मंथ एंड के पहले ही, महीना खत्म होने के पहले ही आप जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, आपका पैसा मतलब रनिंग आउट ऑफ कैश हो रहा है आप, तो ये आपका एक सिम्टम है देखने का। उसके अलावा अगर आपने ओडीसी लिया है, लोन लिया है, उसी पे डिपेंड हो रहे हैं, और ओडीसी से आपकी बढ़ती जा रही है, जो अक्सर मैं देखता हूं कि घटता नहीं बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी कंडीशन अगर आती है, तो अगर आप अपने कस्टमर्स को, अपने वेंडर को देर से पे करते हैं, आपकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई है, दिख नहीं रही है, रूटीन एक्सपेंसेस जो है जैसे जीएसटी हुआ, पीएमआई हुई, ये सब आप ठीक से समय से पे नहीं कर पा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस जो था पहले से उससे कम हो रहा है, ट्रेंड उसका ड्रॉपिंग ट्रेंड हो रहा है,
आप अपने उस पर्सनल पैसे को लाके अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। आप ये देखते हैं कि कौन सा बिल मैं पहले पे करूं, कौन सा बाद में पे करूं ताकि मेरा काम चले, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है कि कौन सा करूं, या फिर आपके पास में कैश दिखाई नहीं पड़ रहा है आफ्टर ऑल, तो आप समझ सकते हैं कि आप इस ट्रैप में फंस रहे हैं और आपको चाहिए कि इससे अब निकलना है और उसके उपाय ढूंढने चाहिए। तो यही हो सकता है सिम्टम। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और लूंगा सर, हाउ कैन स्मॉल बिजनेस रिड्यूस पेमेंट डिलेज फ्रॉम कस्टमर? देखिए, ये तो मैंने जैसे उसमें कवर किया कि आप कई तरीके से अपना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको देना ही पड़ता है अगर आपको क्रेडिट पे, तो उस कंडीशन में आप इनवाइस ऐसा बनाइए ना, मैं तो समझता हूँ कि जो इनवाइसेस आप कर रहे हैं, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें कंडीशन जरूर डालिए, ड्यू डेट डालिए, इस दिन तक पेमेंट आना चाहिए हमारे पास में। आप पेमेंट की सब मेथड डाल दीजिए ताकि कोई बहाना न मिले उसे। आप इसको फॉलो अप ठीक से करिए। पेनलाइज करने की बात करिए कि इंटरेस्ट की बात करिए, इसके बाद आएगा तो जैसे स्कूल में देखते हैं वहां पे या पेमेंट नहीं किया तो पेरेंट्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है, उसके लिए या पेनाल्टी लग जाती है। इस तरह का आप उनसे कर लीजिए कि भाई ये 40 से 45 दिन का हमने टाइम दिया, इसके बाद भी नहीं होता है तो हम इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। कुछ इस तरह के आपको प्लस फॉलो अप आपका होना चाहिए। अर्ली पेमेंट के लिए डिस्काउंट कुछ की बात कर लीजिए कि अगर 10 दिन पहले आप देते हैं तो आपको 1% डिस्काउंट दे देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, जो कुछ आपके बिजनेस चल सकता है। तो इस तरह से आप उनको मतलब अपने पेमेंट को, हाँ जैसे फॉलो अप बताया था मैंने कि फॉलो अप या एडवांसेस आप पहले कुछ पकड़ लीजिए वहां से। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि कस्टमर जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो कैसा कस्टमर है, उसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, वो पेमेंट ठीक से करता है, अच्छा पे मास्टर है कि नहीं है, वो देख लीजिए, रेफरेंसेस चेक कर लीजिए उसका। अगर डिफॉल्टर टाइप का है तो उसको पेमेंट मत करिए, ऐसे लोगों को माल मत दीजिए। इन सब चीजों को अगर आप करें तो मुझे लगता है कि आप अपने पेमेंट को सही समय पे ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। मुझे लगता है सर जो भी आपने इनपुट्स दिए, अगर इसका हम लोग एक टूल डिफाइन कर लें तो अपने डेली कैश को शायद मैनेज कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सुनिए एक बात और कहूंगा कि जो कहना चाहूंगा कि वो ये है कि आप ना इस कैश फ्लो को जो हम लोग खास करके एक साल में बनाते हैं अपना बैलेंस शीट, मैं लोगों को एडवाइस करता हूं कि आप हर महीने एक अपना पीएनएल बनाइए। नॉर्मली क्या होता है कि हम पीएनएल को छोड़ दीजिए, मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं साल में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट को उसके लिए रखते भी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि आप ऐसा करिए कि कंसल्टेंट रखिए, थोड़ा पैसा लगने दीजिए, लेकिन आप मंथली बेसिस पे अपने लेजर को मेंटेन करिए, क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है। अगर इसको आपने कर लिया तो मुझे लगता है कैश फ्लो को आप ठीक से मैनेज करेंगे और प्रॉब्लम आने के पहले आप इससे तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you for the valuable input, sir. We will now proceed to our next speaker. The topic will be cost control strategies. It's now my pleasure to invite CA HK Gupta ji, co-founder, Grow MSME, a financial expert known for the helping business improve profitability without compromising quality. He will be speaking on the cost control strategy for MSMEs, a topic that can directly improve bottom lines. Gupta sir, please begin your session. हेलो, नमस्ते। नमस्कार सर। अच्छा, अशोक जी ने बड़े अच्छे इनपुट्स दिए कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर। तो हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कॉस्ट एक्चुअली है क्या और इसे कंट्रोल करना है तो क्यों करना है। भाई कोई ज़रूरी थोड़ी कि कॉस्ट कंट्रोल करनी है, वैसे ही अगर मेरा सारा काम ठीक चल रहा है तो मुझे कॉस्ट कंट्रोल क्यों करनी है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये कॉस्ट है क्या। ठीक है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसके दो मेजर आइटम है, एक मेरा रिवेन्यू है, दूसरा उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं मैन पावर लगा रहा हूँ, चाहे मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं मशीनें लगा रहा हूँ, इन सबको अरेंज करने के लिए जो खर्चा होता है दैट इज कॉस्ट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिवेन्यू है उसको अर्न करने के लिए जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ या जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ वो सारे का सारा कॉस्ट है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है, क्योंकि ये कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय रिवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि रिवेन्यू तो मेरा रिजल्ट आइटम है, तो रिजल्ट आइटम के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे हाथ में क्या है? मेरा एक्शन। मेरा एक्शन क्या है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो मैं अपने मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ, ये सब मेरे एक्शन आइटम है। ये एक्शन आइटम किस में गवर्न होते हैं? इसके ऊपर मैं खर्चा करता हूँ। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे एक्शन आइटम है। तभी तो मेरा रिवेन्यू बढ़ेगा, कम होगा, आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा कि मेरी कॉस्ट इज द टूल टू अर्न द रेवेन्यू। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अगर कहीं पे आप सहमत हो, असहमत हो, तो ना कुछ लिखते रहा करिए, कुछ ना कुछ एक्शन करते रहा करिए। तो ऐसा लगेगा कि सामने वाले लोग जो है ना वो जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। तो क्या होता है कि नहीं तो मुझे भी लगेगा कि यार ये तो सो रहे हैं, मैं भी भाषण देके चला जाऊंगा। और दूसरा, एक जहाँ कहीं पे आपको कुछ लगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि फॉर गेटिंग द बेस्ट आउटपुट यू हैव टू रेज बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो याद है, मैं जो जानता हूँ, वो मैं उसमें से शायद कुछ ही दे पाऊंगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक तब दे पाऊंगा जब आई विल गेट ए वैलिड एंड गुड क्वेश्चन। ठीक है सर। तो अब हम ये समझ गए कि ये कॉस्ट है क्या, ये तो सब समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब कॉस्ट हमें पता चल गया, तो अब इसको कंट्रोल करना है, खर्चा करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, ये क्यों करना है, कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? नहीं तो ऐसे भी काम तो चल ही रहा है ना। धंधा आता है, धंधा बनता है, धंधा बिगड़ जाता है, कोई धंधा बंद हो जाता है, कोई धंधा ग्रो कर जाता है। तो शायद अगर मैं ये कहूं कि जिस आदमी ने अपनी कॉस्ट को, क्योंकि वो एक्शन आइटम है, बिजनेस का एक्शन आइटम कॉस्ट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। जिस आदमी ने इस पे ध्यान दिया, जिस आदमी ने इसको ठीक से मैनेज किया, उसका बिजनेस सफल होगा, और अदरवाइज उसका बिजनेस, मैं नेगेटिव शब्द यूज नहीं करता। ठीक है माधव, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी? ओके, विल डू। यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, सो अभी क्या हो गया? अब हमें ये लग गया कि भाई अब ये हमें करना क्यों है, कॉस्ट कंट्रोल करना क्यों है। देखो, सबसे पहला नेचर जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर का है, ये बेसिक नेचर है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, बारिंग एक आधा परसेंट को, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ठीक, कोई भी हमारे में से अंबानी का बेटा नहीं है, अदानी का बेटा नहीं है जो कि किसी पे भी, अब देखो उसने क्या किया, जियो में उन्होंने 3-4-5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। ठीक है, और अब वो उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आने लगे उनको। हम ये नहीं कर सकते, हम में से कोई भी नहीं कर सकता, हमारे सामने जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से कोई नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है? हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? कि जहां पे मुझे लगता है कि मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या सबसे जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, अपना जो लिमिटेड पैसा है या समय है या रिसोर्सेज है, वहां पे उसे लगाना है, जिससे कि मुझे जल्दी रिजल्ट आए। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा। जब तक आप उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, जब तक आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि ये वाला पैसा मुझे कहाँ लगाना है, आज मुझे सैलरी देनी है, कल को मुझे रॉ मटेरियल के पैसे देने हैं, परसों को मुझे बिजली का बिल देना है, परसों को मुझे मार्केटिंग के पैसे देने हैं, ये सब जब तक नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। कोई भी काम नहीं करेंगे तो धंधा अटक जाएगा ना। बिजली का बिल नहीं दिया तो बिजली कट जाएगी, सैलरी नहीं दी आपने मैन पावर की तो बंदा काम करना बंद कर देगा, मटेरियल के पैसे टाइम पे नहीं दिए तो क्या होगा, मटेरियल टाइम पे नहीं आएगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ये क्या है? ये मैनेजमेंट है। ठीक है ना। ये मैनेजमेंट कैसे होगा? कि जब आप उस चीज को मॉनिटर करेंगे। सिंपल सा फंडा है, एनीथिंग विच इज गेट मॉनिटर्ड इज डन। अगर आपने किसी चीज को चांस के ऊपर छोड़ा हुआ है तो वो नहीं होने वाली। ठीक है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो करने के लिए क्या करना है? वो मैनेजमेंट। अगर आप उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे, आपको नहीं पता कि कौन सी तारीख को आपकी सैलरी जा रही है, कौन सी तारीख को आपके रॉ मटेरियल की पेमेंट होनी है, कौन सी तारीख को आपको बिजनेस का बिजली का बिल देना है, तो आप कैसे उसे कंट्रोल करेंगे, कैसे आप उसे मैनेज करेंगे?
तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कॉस्ट को कंट्रोल कर। अभी मैं इस बात पे नहीं आ रहा कि कम करना है, ज्यादा करना है, ये ना एक बड़ी सब्जेक्टिव सी टर्म है कि मैं कॉस्ट बचाऊं, खर्च करूं, नहीं करूं, ये सब बात की चीजें। सबसे पहले की चीज ये कि ये कॉस्ट है क्या, कौन सी कॉस्ट को मेरे को खर्चा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट इज व्हाट, कॉस्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दिस इज अ टूल फॉर माय रेवेन्यू। तो अगर ये टूल फॉर माय रेवेन्यू तो इसे मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कम ज्यादा की बात हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे को ये करना है और किस में से करना है, हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज में करना है। ये हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हमें पता है, तो उसी रिसोर्सेज में से हमें ये मैनेज करना है कि हम अपना बिजली का बिल दे दें, मैन पावर दे दें, रॉ मटेरियल के पैसे दे दें, ये सब कुछ दे दें। ठीक है। दूसरा, एक बहुत लोगों ने सुना होगा कि ये जो वेल्थ है ना, वेल्थ इज नेवर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू, इट इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ सेविंग। आपने बड़े बड़े आदमी देखे होंगे जो करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन अल्टीमेटली उनके पास बचता कुछ नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिनकी इनकम कम होती है लेकिन उनकी सेविंग की हैबिट की वजह से और उनके इन्वेस्टमेंट की हैबिट की वजह से उनकी वेल्थ बड़ी होती है। तो बिजनेस में खर्चा तो करना पड़ेगा, आप कंजूसी तो कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वो खर्चा करना है जो जरूरी है। ठीक है ना, अब वही कर रहे हो। आपके पास क्या है, आपके पास अपनी जो आपने एनालिसिस करके ये अपने की आइटम्स निकाले हैं कि जो करने से आपका रेवेन्यू बढ़ता है वो आपको करना है। तो ये क्या हो गया, ये मुझे कि कॉस्ट कंट्रोल क्यों करना है, ये इसलिए करना है मुझे कॉस्ट कंट्रोल कि जिससे कि मैं अपने जो की आइटम्स हैं, जो मेरे जरूरी खर्चे हैं, वो मैं कर सकूं। कई बार क्या होता है ना, मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो पता चला कि मैंने अपने पैसा उड़ा दिया, तो जो जरूरी चीजें हैं मेरे पास, मेरे को उनके ऊपर पैसा लगाने के लिए बचा ही नहीं। 1 kg आयरन थ्योरी आप सब लोगों ने सुनी होगी कि 1 किलो लोहे से मैं क्या क्या बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, लोहा मैं बेचूंगा तो मे भी 60-70 रुपए किलो जाएगा। ठीक है, उसका अगर मैं वेट बाट बना देता हूँ तो शायद वो 200 रुपए किलो जाएगा। लेकिन अगर सोचिए, अगर उसी से मैं घड़ी का स्प्रिंग बनाता हूँ तो वो कई लाख रुपए किलो जाएगा। तो ये क्या है कि दिस इज बेसिकली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं उनके लिए मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, मेरे पास उसके लिए समय होना चाहिए, मेरे पास उसके लिए अवेलेबल मनी होना चाहिए, मेरे मैन पावर के पास टाइम होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री लाइन में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो मैं कैसे होगी मेरे पास, अगर मैंने अपने सारे रिसोर्सेज को मैप नहीं किया हुआ, अगर मैंने उन सारे रिसोर्सेज को जुडिशियली और तरीके से मैंने अपने को काम पे नहीं लगाया हुआ, तो जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं देखूंगा कि यार मेरे पास ना मैन पावर है, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास पैसा बचा हुआ है, ना मेरी फैक्ट्री लाइन में जगह है। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास बीच बीच में आती है मैं उसको मिस करूंगा। इसको हम डिटेल में और आगे समझेंगे। तो अब क्या हो गया कि हमें ये पता चल गया कि ये कॉस्ट कंट्रोल हमें करना क्यों है। ठीक है, अब ये जो हम इतना जानने के बाद इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आया, तो इसमें जो मेरा एक मन करता है कि मैं इसको कॉस्ट कंट्रोल को यूज ना करें, क्योंकि कंट्रोल ना बाय नेचर एक नेगेटिव शब्द नजर आता है। अगर हम कहें ना कि भाई मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ या ये मेरा कंट्रोलर है, तो ऐसा लगता है कि एक मॉनिटर सा व्यक्ति है, एक पुलिस वाला टाइप का बंदा डंडा लेके खड़ा है कि भाई नहीं मैं कंट्रोल करूंगा। तो बेसिकली बाय नेचर जो इंसान है ना, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं चाहता, उसे आजादी चाहिए। तो ये जो कंट्रोल शब्द है ना, हम अपने इस शब्द को अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में यूज ना करें। इट इज नॉट कॉस्ट कंट्रोल, इट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि हम किसी चीज को रोक नहीं रहे, हम कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट कंट्रोल। तो नेवर यूज अ वर्ड ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि उससे जो आपका एम्प्लॉय है या जो आपका टीम मेंबर है, उसे ये लगेगा कि ये जो कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहा है ये तो राजा है और हम प्रजा हैं। तो आपको ये अवॉइड करना है। ठीक, अब हम आते हैं टेक्निक्स के ऊपर। टेक्निक्स के बारे में मैं
एक ना बड़ी एक ग्लोरियस सा शब्द है, और अगर आपने वो उसके ऊपर मास्टरी कर ली तो फिर दुनिया की सारी टेक्निक्स आपके ग्रिप्स में है। वो क्या है? वो बेसिकली वो है डिटेलिंग। जिस भी चीज को आप मैनेज करना चाहते हो उसकी डिटेल्स अगर आपको पता है और आपने उन डिटेल्स को समझ रखा है तो फिर उसे मैनेज करने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये बताएंगे कि अब डिटेल्स क्या है। बड़े सारे लोगों ने सुना है कि भाई बजट्स बनते हैं, टीवी में देखते हैं तो अपना भारत का भी बजट बनता है। तो ये बजट ना एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। और ये बजट से ना आप ये मत समझिए कि कोई एक बहुत बड़ी सी चीज आ गई। नो, इट्स वेरी सिंपल। आपको बहुत बाहर का नहीं, आपको आपके घर का एग्जाम्पल देता हूं। अपने घर में बनाते होगे ना प्लानिंग कि भाई मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, इतनी बच्चों की फीस है, ये मकान का किराया है, इतना बिजली का बिल है, इतना किचन में जाता है, इतना मेड को जाता है, ये सब कुछ हर व्यक्ति हिसाब रखता होगा। आप नहीं रखते तो अपनी वाइफ से पूछ लो, वो जरूर रखते। तो बजट मीन्स आपको ये सबसे पहले तो आप लिखिए कागज पे कि आपके कंपोनेंट क्या क्या हैं। अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या मटेरियल है, मैन पावर है, ओके, ये सारी चीजें आपके बिजनेस के कंपोनेंट हैं। तो आप लिखेंगे कि लेट्स से अगर हम नवंबर में काम कर रहे हैं तो इस नवंबर के महीने में कितना रेवेन्यू आना है एक्सपेक्टेड, कितने मेरे रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है, कितनी मेरा बिजली का बिल है, कितनी मेरी सैलरी है। ये सब कुछ एक कागज पे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें आपको करनी है। उसके बाद सबसे नीचे आप लाइन में लिखिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास पैसे तो 10,000 रुपए हैं, खर्चा 15,000 रुपए आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे आप? प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। घर में भी यही करते हो ना कि यार फ्रिज लेना है, चलो ये अगले महीने लेंगे, अभी इस महीने जुगाड़ नहीं है। तो दैट्स इट, दिस इज द मैनेजमेंट। यही मैनेजमेंट है। बिजनेस में भी आपको यही करना है। आपको लिखना है कि अब आपने सारी चीजें लिख ली, अब आपको ये देखना है कि इसमें से सबसे पहले कौन सा आइटम को अटेंड करने से आपके पास पैसा वापस आएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट की सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेलिंग आपको अचीव करनी है वो ये है कि ये जो हमने एस्टैब्लिश किया है कि ये कॉस्ट इज ए टूल टू रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इज आवर इनकमिंग। तो इन दोनों का एक रिलेशनशिप अगर आप एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए तो फिर आपके बिजनेस की सफलता के जो चांसेस हैं वो कम से कम 50% से बढ़ जाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपने जैसे लिखा हुआ है रेवेन्यू, तो आपको अब जैसे अब आप अपने बिजनेस की डिटेलिंग कर रहे हैं तो डिटेलिंग में आपको क्या क्या और करना है। देखिए, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपका कौन सा प्रोडक्ट स्ट्रांग है, कौन सा प्रोडक्ट जनता में सबसे ज्यादा बिकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, उस प्रोडक्ट की क्या सेलिंग प्राइस है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा होता है, उस प्रोडक्ट पे कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा एरिया, भारत के किस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो, कौन से एरिया में आपका माल ज्यादा बिकता है, कौन से एरिया में आपका माल कम बिकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ काम आएगा अगले बार बताऊंगा। अभी कौन सा आपका एम्प्लॉय स्मार्ट है, कौन सा आपका एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मेहनती है, कौन से एम्प्लॉय के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जैसे पता चलेगा कि आप उसे डेलीगेट करेंगे, उसके पास काम छोड़ेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति में कितना दम है। तो ये क्या हो गई? ये आपकी टीम की या आपके प्रोडक्ट की या आपके ज्योग्राफिकल एरिया की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको पता चल गई। ठीक, अब इन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पता करने से क्या फायदा होगा आपको कि आपके पास अगर मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए खर्च करके आपका एक प्रोडक्ट ए बनता है और 10,000 रुपए खर्च करके आपका प्रोडक्ट बी बनता है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट कौन सा है।
ए या बी, तो आप उस प्रोडक्ट को करने में पहले पैसा खर्च करोगे जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि वो इस प्रोडक्ट आपको पैसा जल्दी से वापस करके दे देगा। फिर जो वो पैसा वापस आएगा उससे आप प्रोडक्ट बी को लगाएंगे और फिर उससे आपकी साइकिल आगे चालू होगी। क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट स्ट्रांग है। ये कैसे पता चलेगा? आपको अपने बिजनेस का एनालिसिस, आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग, आपको अपने बिजनेस की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, चाहे खुद करें या अपनी टीम से कराएं। तो ये आपकी एक और टेक्निक हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, इन्वेंट्री के लिए कुछ बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, वो एक दो मैं चर्चा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी टेक्निक होती है जस्ट इन टाइम। ठीक है, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है कि आप पैसा खर्च तब करते हैं जब उसकी जरूरत होती है, अदरवाइज नहीं करते। ठीक, अब मैंने एक एग्जांपल घर का लिया था, चलो अब घर का ही एग्जांपल से आगे करते हैं, उसी को हम इंप्लाई कर देंगे बिजनेस में। आपके घर में लगभग 1 किलो दाल लगती है एक महीने में, तो आप कितनी दाल खरीदते हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है, एक महीने में 1 किलो दाल लगती है और एक बार में 100 ग्राम 200 ग्राम दाल लगती है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप 200 ग्राम दाल खरीदते हैं या 1 किलो दाल खरीदते हैं या 5 किलो दाल खरीदते हैं, क्योंकि 5 किलो में आपको कोई 2-3% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या बोलती है आपको कि आपको ये बैलेंस क्रिएट करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा ना लगे और ऐसा मटेरियल आउट की सिचुएशन भी आपके साथ ना हो। तो आपने फॉर एग्जांपल 1 महीने का राशन ले लिया आपने, विच इज ए ऑप्टिमम क्वांटिटी। इसको आपको रिप्लिकेट करना है अपने बिजनेस के लिए। ठीक? वो आपको बिजनेस में आपको पता है कि आपको 1000 टन स्टील चाहिए या सीमेंट चाहिए या व्हाटएवर, तो आपको 1 महीने की रिक्वायरमेंट के आजू बाजू ही स्टील लेनी है। कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि इतने पैसे हमारे पास है नहीं, और अगर डिस्टेंस जहां से मटेरियल आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो यू कैन इवन गो फॉर 15 डेज। क्यों? क्योंकि स्टील इज ए वैल्यूएबल आइटम, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो आपको फ्रेट और टाइमिंग इन दोनों में से कंपेयर करना है कि मैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाऊं या 20,000 रुपए का फ्रेट एक्स्ट्रा खर्च करूं, डिपेंडिंग अपॉन माय सिचुएशन। लेकिन ये कब कर पाएंगे आप? जब आपके पास डिटेल्स होंगी अपनी कि मेरा फ्रेट कितना लगता है, यहाँ से यहाँ आने पे कितने दिन में ये आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 15 दिन का स्टील लूं और 15 दिन बाद जब मेरा स्टील खत्म हो तो मुझे परेशानी हो जाए और मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाए। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना। तो ये हम कब कर पाएंगे कि हम बिजनेस की सारी डिटेल्स का मतलब है सारी डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए। मेरा क्या प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट हैं, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, किस स्टेट में बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट में बिकता है, मेरा कौन सा एम्प्लॉय किस काम को करने में परफेक्ट है, ये सारी चीजों की नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। और इन नॉलेज को गेन करने के लिए मेरे पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, तभी मैं इस कॉस्ट मैनेजमेंट वाला जो टूल है मेरा, उसके ऊपर मैं आ पाऊंगा। ठीक है, तो टेक्निक्स हो गई मोटी मोटी। अब इसमें 2-3 चीजें हैं कि इसमें हमें अवॉइड क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो अवॉइड जो करने वाली है वो ये है कि इसे कॉस्ट कंट्रोल नहीं बोलना है, क्योंकि वी आर कंट्रोलिंग नथिंग, वी आर जस्ट मैनेजिंग इट। ठीक है, कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट को कट मत करो, हमेशा कॉस्ट को मैनेज करो। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इज व्हाट, अभी हमने क्या प्रूव किया, कॉस्ट इज द टूल टू अर्न रेवेन्यू। तो अगर आप कॉस्ट कम करोगे तो क्या होगा, रेवेन्यू भी कट होगा। तो हमें कॉस्ट को कट नहीं करना है, कॉस्ट को हमें मैनेज करना है। दूसरा काम, कभी ये चर्चा मत करो कि मैं मैन पावर को कट कर रहा हूं। बड़ा आता है ना किताबों में कि ये इन्फोसिस में मैन पावर कट चल रहा है, टीसीएस में मैन पावर कट चल रहा है। नो, नेवर। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टूल है। अगेन, अगर आपको किसी को निकालना भी है तो उसे मैनेज करो। कैसे करना है मैनेज, ये सब लोग जानते हैं। जो अपने मैन पावर को प्रॉपरली
नहीं मैनेज कर पा रहा है कि कब उसे रखना है, कब उसे निकालना है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक, एक हमारे यहाँ बड़ा शौक होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि जी हम कॉस्ट कटिंग का ड्राइव चल रहा है आजकल और लाला जी देखते हैं कि कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। नो, कॉस्ट कटिंग इज नेवर नीड ए ड्राइव, इट शुड बी डन डेली। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जी आज हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। नो, इट शुड बी माय रूटीन। पुराने जमाने में कहते थे ना, हमारे सीए के ऑफिस में क्या होता था कि हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो लिफाफे आते थे, अब तो आते नहीं ना, ईमेल का जमाना हो गया, पहले चिट्ठियां आती थी बड़ी बड़ी। तो वो बंदा क्या करता था, वो जो लिफाफे खाली होते थे ना, उनको वो रफ पेपर की तरह यूज करता था। तो दैट वाज द एक्सट्रीम। तो इस लेवल पे लोग होते थे। तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट इज ए हैबिट। ठीक है, अब मुझे लगता है 2-3 लोगों ने ना रेज हैंड किए हुए हैं। अगर किसी को कोई कुछ पूछना हो तो 1 मिनट बीच में डाल देते हैं, फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। Yes, Mr. Manish is there. हाँ, मनीष जी बताएं। अरे कन्हैया सिंह जी, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ मनीष जी, Manish Chawla. मनीष जी आप रेज हैंड कर रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे, बताएं। चलो, मुझे लगता है वो भूल गए, चलो कोई बात नहीं। तो अब हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, ये डिस्कस कर लिया कि कॉस्ट कंट्रोल क्यों करना है, ये भी डिस्कस कर लिया कि कैसे करना है, ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या नहीं करना। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली इसमें से निचोड़ क्या निकल के आया। तो एक तो सबसे पहली चीज तो ये नजर करके आए कि ये कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल इज नथिंग, कॉस्ट कंट्रोल इज ए यूजलेस थिंग। कॉस्ट कंट्रोल करके कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट। और दूसरा, इसका कोई ड्राइव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हमें कॉस्ट मैनेजमेंट करना है। कॉस्ट मैनेजमेंट इज ए माइंडसेट। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट बिजनेस का एक कोर है। ये मुझे आज नहीं करना, कल नहीं करना, ये मेरे कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये आदत है कि मैं हर चीज को देखभाल के खर्च करता हूँ। कब करता हूँ? जब जरूरत हो। कितना करता हूँ? जितनी जरूरत हो। ठीक, इट इज ए माइंडसेट, इट इज माई स्ट्रेटजी, इट इज माई प्रोसेस। तो कॉस्ट मैनेजमेंट इज नॉट ए एक्टिविटी, इट इज ए प्रोसेस। ये मेरे बिजनेस के एक्शन प्लान में इनकलकेट होना ही चाहिए। ठीक, एक चीज जैसे हमने कहा कि एक जो रिलेशनशिप आपने एस्टेब्लिश करी है ना मैंने, कि कौन सी कॉस्ट खर्च करने से मेरे रेवेन्यू में सबसे ज्यादा असर पड़ता है, ये मुझे पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, इसका क्या इम्पैक्ट निकल रहा है। मैं अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करता हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं प्राइस को 10 रुपए कम कर रहा हूँ या 5% कम कर रहा हूँ तो इसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये सब चीजें मैंने डिटेलिंग में अभी जो टेक्निक्स हैं मैंने वो ले ली हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर मैं सोचूंगा कि यार मुझे रिवेन्यू को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो कैन आई रन अ डिस्काउंट ऑफर, कैन आई रन अ मार्केटिंग स्कीम, कैन आई रन अ प्रोडक्ट कैंपेन, कैन आई रन अ प्रोडक्ट कैंपेन इन अ पर्टिकुलर स्टेट। ये कैसे होगा? वो डिटेलिंग से आएगा जो कि मैं कर रहा हूं। ठीक, इसके बाद क्या है, ये तो हो गया कि पैसा तो घूम गया ना। इसके बाद क्या होता है कि पैसे से कुछ ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं कि पैसे के रिजल्ट्स को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने वाला क्या होता है, मेरा एक्शन। हाउ एफिशिएंटली आई एम रनिंग दैट एक्टिविटी। तो जब वो एक्टिविटी या एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है तो मैनेजिंग दैट एक्टिविटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं चर्चा कर रहा हूं, तो अगर मैंने मार्केटिंग कैंपेन चलाया और मेरे रिटेल स्पेस में शेल्फ पे वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा वो मार्केटिंग कैंपेन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उस मार्केटिंग कैंपेन से कोई व्यक्ति अगर दुकान पे पहुंचा भी और उसे वो सामान नहीं मिला, तो
तो मेरा मार्केटिंग कैंपेन तो खराब हो गया। तो क्या है, ये मेरा एक्टिविटी बजट है, ये मेरा एक्शन बजट है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं, तो उसके अगर 10 एक्शन पॉइंट है मेरे, तो वो 10 के 10 एक्शन पॉइंट होने चाहिए, ठीक। तभी वो कॉस्ट मैनेजमेंट का जो मेरा एक्शन प्लान चल रहा है वो एक्चुअली रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, कि मैंने क्या किया हुआ है कि मैं आज के मेरी क्या जरूरत है उसके लिए मेरा प्लान है कि मेरा कॉस्ट या कैश या रिसोर्सेज एलोकेट हो गए कि दीज आर माय करंट रिक्वायरमेंट, ठीक। अभी क्या जो नेचर हो गया बिजनेस का, पुराने जमाने में क्या होता था, उषा की मशीन चलती थी, दादा भी चलाती थी, बहू भी चलाती थी। आजकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटी हो गई है, तो आज जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं इसका मतलब कल को वो बंद होगा, नेचुरल सी बात है ना। आजकल देखिए 2 साल में नया मोबाइल आ जाता है, 6 महीने में नया ब्रांड आ जाता है, ये 3 साल में नया टीवी आ जाता है। तो मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ कल को वो भी खत्म होगा। तो मैंने उसके लिए क्या प्लान किया हुआ है कि मैंने करंट रिक्वायरमेंट तो कर ली, लेकिन अगर मैंने ये रिक्वायरमेंट अपनी पूरी नहीं की या प्लान नहीं की कि मैं कल को क्या करूंगा, तो देयर इज ए थ्रेट टू माय बिजनेस कि कल को ये बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को मैंने इंतजाम ही नहीं किया हुआ कि मैं कल को क्या करूंगा। तो व्हाट इज माय एक्टिविटी प्लान? एक्टिविटी रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर टुडे, एक्टिविटी एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर टुमारो, कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूं। ये दोनों जरूरी है। ये सब कुछ करने के लिए मैंने क्या करना है, अगेन वही सब कि ये कॉस्ट कल की एक्टिविटी के लिए भी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके मुझे आज यूज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि टुडेज एक्सपेंडिचर इज इनकम फॉर टुमारो। तो ये साइकिल मुझे बनानी है एंड दैट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कि आज मैं कौन सा खर्चा करूंगा, कल मैं कौन सा खर्चा करूंगा, परसों मैं कौन सा खर्चा करूंगा, जिससे कि मेरे बिजनेस की कंटिन्यूटी और ग्रोथ मेंटेन रहे। तो इस पूरे जो एपिसोड हमने डिस्कस किया कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, उसमें सबसे पहला चीज तो मैं ये रिएटरेट करूंगा हमेशा से कि इट इज नॉट कॉस्ट कंट्रोल, इट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट इज एक्शन आइटम। एक्शन आइटम का मतलब क्या है कि जो काम करने से मुझे रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या है? मेरा रेवेन्यू। रेवेन्यू इज रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आज अपनी कॉस्ट से जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ या जो मैं खरीदारी कर रहा हूँ या जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ उससे कन्वर्ट किसमें होगा? वो रेवेन्यू में होगा। तो पहली चीज तो मुझे कॉस्ट इनकर करनी है। कैसे करनी है? इट इज पार्ट ऑफ माय कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ठीक। ये सब कुछ करने के बाद, ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा टूल है, एक डिटेलिंग, और एक डिटेलिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल ये है कि आप लोग अपने बिजनेस का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक मंथली इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कीजिए और उस मंथली इनकम स्टेटमेंट को आप पीसेस में ब्रेक कीजिए। पीसेस में ब्रेक करने का मतलब क्या है कि अगर आप ऑल इंडिया ऑपरेट कर रहे हो तो आपको एरिया वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, एरिया वाइज कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज की इफेक्टिविटी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस में एक 80-20 का रूल होता है, ठीक, कि 80% रेवेन्यू जो है ना वो हमें 20% आइटम दे रहे होते हैं। इट इज ओके। क्या होता है कि कभी कोई 20% आपको 80% दे रहा है, फिर दूसरा आइटम दे रहा है। मान लीजिए आज आपने किसी नए स्टेट में काम शुरू किया तो उसमें आप 3-4-5-6 महीने इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। ऐसा कोई सेगमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए कि जो बाकी के सारे प्रोडक्ट के और बाकी सारे स्टेट्स के प्रॉफिट को खा रहा हो और लंबे समय से खा रहा हो, या कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए
जो कि बाकी सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को खा रहा हो या उनके प्रॉफिट को वेस्ट कर रहा हो। ये देखना भी आपका काम है, जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। और ये कर कैसे पाएंगे आप? अगेन वही डिटेलिंग से। ठीक है, तो इतने सबके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, ये कहते हुए कि कॉस्ट कंट्रोल इज नॉट कॉस्ट कंट्रोल, इट इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट। और ये टूल है कि आपका रेवेन्यू अनइंटरप्टेडली आता रहे, ग्रोथ उसमें होती रहे, और ये कॉस्ट को इनकर करना आपके लिए जरूरी है, जिससे कि आपकी रेवेन्यू की कंटिन्यूटी बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। सुनील जी। सुनील जी, आप सर को थैंक्स बोले, उसके पहले मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट तो सर ने जो हमने टॉपिक रखा और उसको लेके हमारा आइडिया भी यही था कि चीजें आए सामने, बार बार कंट्रोल यूज करते हैं। सर ने बड़ी सफाई से मैनेजमेंट वाली बात कही और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे बड़ी बात कि आज एक खूबसूरत दिन को सर ने बड़ी खूबसूरती से, हालांकि हमेशा ही करते हैं, आज बड़ी खूबसूरती से सबके सामने सब कुछ रखा। तो मैं सबके बिहाफ पे, जितने सारे लोग यहाँ अभी अवेलेबल हैं, उन सबके बिहाफ पे सर को उनकी मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी, सर का आज मैरिज एनिवर्सरी है और सर ने बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। तो सर, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप दीर्घायु हुए, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और हम सबके साथ रास्ता दिखाते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुनील जी, आप। Thank you, Gupta sir, for that detailed and practical session. We will now take a few questions from the participants, if any. I think Vijay Sharma ji, please ask your question. सर, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि इनिशियल फेज में और लॉन्ग टर्म में क्या इसके जो कॉस्ट मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है वो मतलब डिफरेंट हो सकता है? इनिशियल फेज इन द सेंस कि कोई अगर नया स्टार्टअप कर रहा है, अभी उसके पास बहुत सारी डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अभी नहीं है, चीज़ें सेटअप कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है, जैसे जैसे चीज़ें आ रही है, उस तरह से वो सेटअप कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है उस पर। और बहुत सारे टूल जो हैं, जो कंपनियां यूज़ करती हैं, फोरकास्टिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, बजटिंग हो गया। तो इनिशियल फेज में स्टार्टअप में ये थोड़ा सा डेटा इस तरह से नहीं होता या फिर होता नहीं है, मिल नहीं पाता। तो क्या इस इनिशियल स्टार्टअप फेज पे और बाद पे कॉस्ट मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव चेंज होगा या बदलेगा या कुछ है इस पे? सर, जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉस्ट मैनेजमेंट माइंडसेट, ये आप स्टार्ट कर रहे हो तब भी है, जब आपका बिजनेस है। देखिए, प्लानिंग की ना दो थ्योरी होती हैं जनरली। एक फॉरवर्ड प्लानिंग होती है, ठीक है, थोड़ा कम चलती है, मतलब जो फंसी लोग होते हैं ना, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो पहले प्लानिंग करते हैं, बड़ा मैं ऐसे करूंगा, कागज पे भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरी जो थ्योरी है, जो ज्यादा सक्सेसफुल है और जो ज्यादा यूज होती है, मनोज पांडे जी धन्यवाद, उसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक, ये स्टीव जॉब्स की थ्योरी है सर। इसमें क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि आपको काम शुरू करने से पहले इतनी ज्यादा मारामारी करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में लगाना, सोचना नहीं है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हो आप। शुरू में होता भी यही है ना, मेरा एक इंस्टिंक्ट है, मैं उसी को फॉलो करके बिजनेस स्टार्ट करता हूँ ना। तो मैं जब मैं अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करके कोई काम शुरू कर रहा हूँ, तो वो ये कहता है कि यार बिल्कुल अंधे मत चलो। ठीक, आपने एक काम करा, अपने इंस्टिंक्ट से करा, कुछ आपको सफलता मिली, कुछ आपको विफलता मिली, आप थोड़ा आगे बढ़े, फिर आपने दूसरा काम किया, अपने इंस्टिंक्ट से किया। तो जब आप दूसरा तीसरा काम कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा समय लगा के ये देखो कि यार आपके पहले दूसरे तीसरे काम में कोई लिंकेज है या नहीं है, या आप ऐसे ही मतलब हवा में बैट घुमा रहे हो। ठीक है ना? तो ये जो डिग्री है ना फोरकास्टिंग की, इसकी, ये इसमें फर्क आ सकता है, लेकिन इसमें फर्क नहीं आ सकता कि आप प्लान ना करो, मैनेज ना करो। और फिर एक डिजाइन थिंकिंग के बारे में आपने सुना होगा ना, दैट इज अ प्रोसेस। वो क्या कहती है कि आप जब भी कोई डिसीजन लो,
तो आप शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेन पेपर लेना पड़ेगा, आपके सामने जो भी डिसीजन है आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए क्या प्रॉब्लम है, उसके नीचे आप लिखिए शांति से बैठ के क्या क्या आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्या क्या उसके प्रोज हैं, क्या क्या आपके कॉन्स हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने 99% संभावना इस बात की कि आपके सामने क्लैरिटी होगी कि आपको क्या डिसीजन लेना है। धीरे धीरे जब आप इस प्रोसेस को करेंगे ना, तो 6-8 महीने बाद आफ्टर टेकिंग 100-150 डिसीजंस बाय राइटिंग इट ऑन पेपर, फिर ये आपका माइंडसेट बन जाएगा, आपकी बॉडी में ये प्रोसेस ना अट्यून हो जाएगी आपकी बॉडी। हम कहते हैं ना कि इसके जो इसके ज्ञान इंद्रिया कंट्रोल में है, इंद्रिया कंट्रोल में, वो क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके एक्शन में, दिमाग में, मन में, जुबान में, आंखों में, कानों में कनेक्शन जो है वो स्ट्रेट है, तो इसके सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो वो आप कर पाएंगे कि जैसे ही आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कोई, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा और वो आपके मन में सामने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस उसके ना आ जाएंगे और आप वो डिसीजन ले पाएंगे और ये प्रोसेस धीरे धीरे आपका फास्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना कुछ लोगों की डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होती है, ये होती है कि या तो उसने अपने आप को अट्यून किया है बाय एक्सरसाइजिंग दिस प्रोसेस, या फिर कई बार भगवान भी बना के भेज देता है ना कुछ लोगों को, इनबिल्ट गॉड कोई गिफ्ट दे देता है कुछ पावर्स का, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। आप अगर इस प्रोसेस को करेंगे ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी डिजाइन थिंकिंग से। लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि अगर आप स्टार्टअप हो तो आप बिना सोचे समझे आप करेंगे, आप दिमाग से ये जरूर लगाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीइंग इन इनिशियल फेज आपके पास रिसोर्सेस और कम है, तो आपको उन रिसोर्सेस को अप्लाई करने से पहले और ज्यादा सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिए, देयर आर टू थिंग्स, एक तरीके का गैम्बलिंग, आप आंख बंद करके किसी भी चीज में डाल रहे हो, वो कहते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो अगर ऊपर वाले की मेहरबानी है तो आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को सोच के खर्च कर रहे हो तो आपकी सफलता की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जस्ट गैम्बलिंग। ये मेरा पर्सनल मानना है। होप आई हैव आंसर्ड यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक कॉमन क्वेश्चन और था, वेयर डू MSMEs commonly overspend unknowingly? देखो, ओवर स्पेंड और अंडर स्पेंड का क्वेश्चन इतना ज्यादा गंभीर नहीं है। ठीक, ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम यह है कि हम स्पेंड करते हैं और वो वेस्ट होता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी जो टूल है या जो करना चाहिए MSME, अब देखिए ये वेस्टेज की बात आ गई ना, क्योंकि सुनील जी ने एक स्मार्ट क्वेश्चन किया तो ये वेस्टेज की बात आ गई, अदरवाइज मेरे पूरे डिस्कशन में वेस्टेज का जिक्र नहीं था, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको एक अच्छी चीज जानने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक, तो वेस्टेज क्या है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हमने जस्ट इन टाइम की बात की, अगर जस्ट इन टाइम नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल की अवेलेबिलिटी वेस्ट होगी, उसमें क्या कितनी चीजें वेस्ट होंगी, मेरा मटेरियल वेस्ट होगा, उससे क्या होगा, पिलफरेज बढ़ेगी, मटेरियल का खराब होना उसमें शामिल है, मेरा स्पेस का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, कई बार उस मटेरियल को स्टोर करने के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, वो खर्च करनी पड़ रही है आपको, तो ये क्या है, दिस इज वेस्टेज। ठीक, अब क्या है, 10 आपके ने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, लेकिन क्या है, आप खुद काम पे लगे हुए हैं, आप उनको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे, आपने उनके KYC नहीं बनाए हुए, आपने उनके की रिजल्ट एरियाज नहीं बनाए हुए, आप उनको डेली टास्क नहीं देते हो, आप उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करते हो, आप उनको मॉनिटर नहीं करते हो, तो ये क्या हो रहा है, आपकी मैन पावर वेस्ट हो रही है। ठीक, क्या होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, नया टेंडर आया जिसमें आपको पता चला कि अवार्डिंग अथॉरिटी आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे, आप उसको फोकस ही नहीं कर पा रहे, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, आपने अपने आप को छोटे छोटे कामों में भर रखा है, तो क्या हो रहा है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे। ये क्या हो रहा है, ये वेस्ट क्या हो रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो रही है। अगर ये टेंडर आपको मिल जाता तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाता, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता, तो क्या होता है कि ओवरऑल
क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगा हर स्टेक होल्डर के लिए। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि अपने आप को क्लटर में आपने डाल रखा है और आपकी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो रही है। तो क्या हो गया? अगेन ये क्या, किसकी वेस्ट हो गई? ये स्किल की वेस्ट हो गई, टाइम की वेस्ट हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ? आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपने कहा यार आप जिस धंधे में करते हैं इसका कंट्रोलर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, या आपके चाचे का मामा है, या मामे का रिश्तेदार है, या मेरे ससुर का भाई है। लेकिन क्या हो रहा है? आपने अगेन अपने आप को क्लटर में डाला हुआ है। आपके पास टाइम नहीं है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, और अगर रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को अपने बिजनेस के लिए यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को क्लटर में डाला हुआ है। आप छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं, आपने अपने काम को अपने एम्प्लॉयज को डेलीगेट नहीं किया हुआ। तो ये किस चीज का लॉस हो रहा है? ये आपकी रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी का वेस्टेज हो रहा है। तो क्या हो गया कि वेस्टेज इज एट एवरी पॉइंट पे ये वेस्टेज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जिस व्यक्ति ने, जिस भी एंटरप्रेन्योर ने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर लिया विद मिनिमम वेस्टेज, दैट इज द मोर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर? जी सर। सर अगला क्वेश्चन मेरा केपीआईज पे था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी सब कवर कर लिया है कि एक एमएसएमई को किस तरह से अपने केपीआई एस्टेब्लिश करने चाहिए कि वो अपना कॉस्ट मैनेजमेंट को ट्रैक कर सके। आई थिंक आपके सेशन में वो पूरा कवर हो गया है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ और ऐड करना है सर केपीआईज को लेके तो प्लीज मेंशन इट। केपीआई बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। केपीआई में जैसे मैंने अपने सेशन में ये बताया कि आपको अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब आपका ऑर्गेनाइजेशन 10 लोगों से ऊपर पहुंच गया ना, तो उसमें 2-3 बेसिक चीजें हैं जो होती हैं। एक तो आपके 10 से ऊपर के जो आपका सेटअप है, आपके यहाँ ग्रुप्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, 10 एम्प्लॉयज में भी आपको देखेगा 2 एक ग्रुप के पार्ट है, 3 एक ग्रुप के पार्ट है, 4 एक ग्रुप के पार्ट है। ये होगा ही होगा। ठीक है, उन लोगों का कम्युनिकेशन फ्री होगा नहीं आपस में, वो भी अपने आपस में अपनी बातों को अपने सीने से लगा के रखते होंगे। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर होती नहीं होगी। कई बार आपको लगता होगा कि मेरे भाई ये इंफॉर्मेशन तो तेरे बाजू वाली डेस्क वाले के पास पड़ी थी, उससे ली क्यों नहीं तूने? 3 दिन से वेट कर रहा है कि ये क्या करूं इसका मैं। ऐसा आपके साथ होता होगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको उनके रिलेशनशिप को ना डिफाइन करना है, उनके काम को डिफाइन करना है। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम सारे लोग एंटरप्रेन्योर हैं, हम में ना थोड़ा सा लालच होता है। हमें ये लगता है कि हम इस एम्प्लॉय को थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल करेंगे ना तो ये जो काम कर रहा है ये करेगा नहीं। ठीक है, ऐसा होता नहीं। जितना काम उसने करना है ना वो उतना ही करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर उसमें सेल्फ मोटिवेशन होता, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती तो वो आपकी जगह होता। ठीक है, वो आपके यहाँ काम नहीं कर रहा होता। दूसरी बात, एक और सच्चाई, कड़वी है लेकिन सच है। भारत में जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ना, उसको कौन दूर कर रहा है? उसको एमएसएमई दूर कर रही है। पूछो क्यों? क्योंकि जो टाटा, बिरला, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस में जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, तो पहले तो अखबार में एडवर्टीजमेंट आता है या आप अप्लाई करते हो, फिर आपके 15 इंटरव्यू होते हैं, 12 ग्रुप डिस्कशन होते हैं, 4 लोग आपके रिज्यूमे को एसेस करते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं, तब जाके आपको वो नौकरी मिलती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि आपके पास, मतलब इन कंपनियों में ये जो एस्टैब्लिश या ऑर्गेनाइज्ड और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है वो काम किस पे कर रहा है? वो स्किल पे काम कर रहा है। मतलब जो क्रीम है ना, जो अच्छे वाले हैं वो वहां चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कौन आया? आपके पास कौन आता है? वो गुप्ता जी का लड़का या शर्मा जी का लड़का या श्रीवास्तव जी का लड़का। क्योंकि श्रीवास्तव जी ने गुप्ता जी को फोन किया कि यार एक लड़का है आपके यहाँ को कहीं खप जाए तो लगा लेना। तो गुप्ता जी कहते हैं यार चलो भेज दो, देख लेते हैं। ठीक, 90% वो बंदा उसके रिज्यूमे को नहीं देखता। ठीक, क्योंकि उसके यहाँ क्या है कि यार एक बंदा चाहिए। ठीक है, तो उसे रख लेता है बिना ये सोचे कि ये उसमें फिट है या नहीं है। बहुत अच्छे लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, 10-20%, मेरे जैसे, कि यार कम से कम वो उस डिपार्टमेंट का तो है जिसका मुझे बंदा चाहिए, बाकी तो चलो मैं सिखा लूंगा। ऐसे ही होता है ना जी। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट की समस्या कौन दूर कर रहा है? एमएसएमई दूर कर रही है। क्योंकि जो बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता। अगर वो टाटा में नहीं होता तो बिरला में होता, बिरला में नहीं होता तो इन्फोसिस में होता, इन्फोसिस में नहीं होता तो कहीं और होता।
लेकिन जो एमएसएमई में काम कर रहा है ना भाई, अगर वो वहां नहीं होता तो कहीं नहीं होता, वो खाली घूम रहा होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने रख लिया, चलो हमने रख तो लिया, लेकिन हमें उसके ऊपर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसकी ट्रेनिंग, कम से कम उसे अपना काम तो सिखा दो यार। कई बार ऐसा होता है कि आप जब आपके यहाँ कोई बंदा आता है 15 दिन तक वो यही पूछता रहता है जी मैं करूँ क्या। ये सब अपने गरेबान में झांक के देखना तो ये पता चलेगा। तो आपको अपने जो भी 8, 10, 5, 7 है ना, 2 दिन लगा के उनके, उसे केपीआई मत बोलो ना यार, उससे हिंदी में बोलो कि यार ये करेगा क्या, ये सोच लो। कम से कम इतना कर लो, एक रेशो बताता हूँ कि एक आदमी को अपनी जितनी वो सैलरी ले रहा है ना उसके 10 टाइम कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ये सिंपल सा रेशो, 10 नहीं कम से कम बराबर का तो कर। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में ये थोड़ा कम हो सकता है, सर्विस में थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आप इतना तो उसके लिए प्लान कर लो ना कि वो अपना काम कर ले। और एक और बात, अगर आप उसके ऊपर ध्यान करोगे ना, उसको थोड़ा ट्रेन करोगे, तो कम से कम आपके जो बर्डन वाले काम है ना, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, जो रिफाइंड है, जो रूटीन में किया जा सकता है, कम से कम वो काम तो डेलीगेट करो यार। ठीक है ना, अब मॉनिटरिंग में रखो, फिर उसी जाएगा। उससे क्या होगा ना, आपका बर्डन कम होगा। एमएसएमई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो, उसका जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो ग्रोथ रिलेटेड आइटम्स पे काम नहीं कर पाता, और जो कर लेता है वो बड़ा बन जाता है। अभी पिछले 10 सालों में बहुत सारी एमएसएमई निकल के बाहर आई है ना। क्यों निकल के बाहर आई है? क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने रिसोर्सेज एलोकेशन पे काम किया, बाहर निकल गई। आप नहीं करोगे तो आप भी नहीं निकलोगे। ठीक है, थैंक यू सर। नो, थैंक यू टू एवरीवन फॉर योर क्वेश्चंस एंड एंगेजमेंट्स। हाँ, मुझे लगता है आज मैंने टाइम का भी ध्यान रखा है, विद इन द टाइम जितना एलोकेटेड था उसमें हम कर पाए इसे। 1.5 घंटा होने वाला है ना हमें। यस, हेलो नाउ वी हैव कवर्ड। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, सॉरी, बताएं मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट मुझे जो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है वो ये आती है कि मार्केट से पेमेंट की रिकवरी के ऊपर अगर कुछ हो तो बताएं। देखो सर, अब इसका एक तो बता रहा हूँ मैं, परमानेंट इलाज, हाँ जी, जिसे कहते हैं ना रामबाण, जी जी पहला। दूसरा फिर मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे जी। पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि आप अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बेच रहे, आप एक्सपीरियंस और कंसेप्ट बेच रहे हो, तो आपके पैसे के टाइम पे आने की संभावना 25% बढ़ जाएगी। पहली चीज, हाँ, ये हो सकता है। दूसरी चीज कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में अगर दम है, आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट आपसे चाहिए, तो आपके पैसे टाइम पे आएंगे। ये दूसरी चीज हो गई। ठीक है, अब इनसे आप आ जाओ प्रैक्टिकल में, क्योंकि होता तो है नहीं, ये हम करते नहीं। हम तो सब हम सब मीटू में काम करते हैं। हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कभी ध्यान नहीं दिया, हमने अपने प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया, और हम ये सोचते हैं कि हमारे सारे काम अपने आप हो जाए। अब मैं कहता हूँ और ध्यान रखने वाली बात है, क्या आपने अपने आप को उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? कराया हुआ है। ये भगवान की कृपा से ये भारत में बहुत सारे लोगों ने कर लिया, नहीं तो आज से 3 साल पहले तक ये भी नहीं होता था। अब ये क्यों होने लगा है? जहां जाते हो वो मांगता है उद्यम का नंबर, इसलिए जरूरी कर दिया। क्या हम अपने इनवॉइस पे अपने उद्यम का नंबर लिखते हैं? यस, नो। 20% लोग लिखते हैं, 80% लोग नहीं लिखते। इसका मतलब आपका कस्टमर ये प्ली ले सकता है कि मुझे नहीं पता कि मैं जिससे माल खरीद रहा हूं वो एमएसएमई है या नहीं है। हर एक कंपनी को, अगर आपका कस्टमर कंपनी है, तो हर एक कंपनी को एक रिपोर्ट देनी होती है एमसीए पे या सरकार को कि किसी एमएसएमई को ऐसा तो कोई पैसा नहीं है जो मुझे उसे 45 दिन से ज्यादा पे देना है, और अगर देना है तो मैंने उस पर ब्याज प्रोवाइड किया है या नहीं किया। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं उसके डरने की बात है। क्या होता है ना, ये सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजंस, ये सब ईमानदार अच्छे लोगों के लिए होते हैं। अगर कोई बदमाश है जिसकी नीयत खराब है, वो आपको पैसा नहीं दे रहा, तो आप टेक्निकली उसका कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, जैसे पुराने जमाने में कहते थे हमारे बड़े बूढ़े कि भाई ताले जो हैं वो शरीफों के लिए होते हैं, चोरों के लिए नहीं होते, चोर तो तोड़ के आ जाएगा। तो ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर है कि जो आपका पैसा नहीं दे रहा, उनमें से 80 to 90% लोग शरीफ हैं, 10% लोग बदमाश हैं। तो जो बदमाश है उनका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो प्रोविजन मैं आपको गिना दूंगा, गूगल पे भी मिल जाएंगे, समाधान में जाओ, केस करो, ये सब कुछ करो, इसका भी कुछ नहीं हो रहा। अगर आप एमएसएमई की वेबसाइट पे जाएंगे तो सिर्फ 10% केसेस के समाधान होते हैं, और उनमें भी किनके होते हैं, जो मैं कह रहा हूँ 80 to 90% जो लोग समझदार हैं, जो ऑनेस्ट है, उनके होते हैं। तो उनके काम करने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि सर आप अपने इनवॉइस के ऊपर एमएसएमई का नंबर लिखिए, आप बताइए उन्हें कि मैं एमएसएमई हूँ, मेरा पैसा 45 दिन में नहीं दोगे तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा, एक छोटा सा फॉलो अप मैकेनिज्म सिस्टम आप अपने यहाँ डेवलप कीजिए। देखिए, आप अपने आप के बारे में भी बात कर सकते हैं, हम ना फॉलो अप ड्रिवन लोग हैं। तो हमने अगर क्रेडिट का धंधा हम कर रहे हैं और हमारे जो कस्टमर, जो बंदे से मैंने माल खरीदा है, उसका फोन नहीं आया, तो मेरा सिस्टम उस पर काम करना शुरू नहीं करता। तो ये आप अपने कस्टमर को भी बेचारे को बेनिफिट ऑफ डाउट दो ना। तो एक फॉलो अप सिस्टम उसके लिए चलाओ कि भाई अगर 45 दिन का क्रेडिट है तो 40 दिन के बाद आप उसका फॉलो अप शुरू कर दो। क्रेडिट कार्ड रखा है आपने, है क्रेडिट कार्ड है, तो देखा ना वो क्रेडिट कार्ड की एजेंसियां 5 दिन पहले से फोन आने शुरू हो जाते हैं, सर आपकी ड्यू डेट 3 तारीख है, प्लीज कीप दिस बैलेंस। ईएमआई वाला भी करता है ना, 2 तारीख का ईएमआई है तो 5 दिन पहले से उसका फोन आने लगता है, प्लीज मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस इन योर दिस बैंक अकाउंट। तो भाई ये आप क्यों नहीं कर सकते? वो पागल है कि इतनी बड़ी कंपनी लिए बैठा है, उसका तो लीगल भी सब कुछ है, इतना स्ट्रांग है, आपने इतने पेपर साइन करके दिए हुए, तब भी वो आपको याद दिला रहा है। अरे भाई आप तो एक छोटे से एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर हो, आप अपने कस्टमर को याद दिलाओ 5 दिन पहले कि मेरे भाई आपका चेक ड्यू हो रहा है। तो क्या हो गया, सबसे पहले आप एक्सपीरियंस बेचना शुरू करो, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो, अपने कस्टमर से बीच बीच में बातें करते रहो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, और फिर ये प्रिकॉशन लो कि एमएसएमई का नंबर लिखो, फॉलो अप सिस्टम रखो, कम्युनिकेशन प्रॉपर करो, तो 80 to 90% आपकी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब वो जो 10% रह गई ना, टेक्निकली उनका कुछ नहीं किया जाता, उसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो ऐसे लोग आपके चक्कर में ना पड़े। उसका मैकेनिज्म है, भाई समाधान में जा सकते हैं आप, लीगल केस कर सकते हैं आप, लेकिन उनकी सफलता की कोई एक तो गारंटी नहीं है। दूसरा, आप अपना धंधा छोड़ के उनके पीछे लगना पड़ेगा ना। समाधान में भी आप मीडिएशन में जाओगे, आपका टाइम खोटी होगा, ठीक है ना। तो आपको वो प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ना है, और जब आप ग्रो कर रहे हो ना रास्ते में, तो कोशिश करना है कि जितने कांटे आपके रास्ते में आ रहे हैं उनसे जितना बच के तेजी से आगे बढ़ सको ना, वो बढ़ना है। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, आई मे बी रॉन्ग। अनम्यूट कर लो सर, सर अनम्यूट कर लो, अनम्यूट सर, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। सुनाई नहीं दिया कुछ भी जो आपने बोला। हेलो हेलो सर, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, मैंने अपनी तरफ से पूरी अपनी समझदारी, पूरी एमबी अपनी लगा दी, लेकिन फिर भी वो 10-20% वाले जो लोग हैं ना, और ऐसा नहीं कि छोटे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है। अरे तो बड़े ही तो ज्यादा मारते हैं मेरे भाई, बड़े ज्यादा मारते हैं, छोटा फिर भी दे देगा। अशोक जी ने बताया था ना, क्या करते हैं आप, किसी को ऑर्डर देते हो, वो कहते हैं ऑर्डर के साथ 20% भेज दो, ऐसा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये बड़े लोग तो खा रहे हैं, छोटा तो फिर भी भाईबंदी में मान लेगा आपकी बात। अरे बड़े ज्यादा, अरे बड़े में जो पैसे, जहां पैसे फंसे हुए हैं ना सर, सबसे ज्यादा पैसा जो है ना सरकार के पास फंसा हुआ है, छोटे छोटे वेंडर्स का, छोटे छोटे व्यापारियों का पैसा जितना सरकार के पास फंसा हुआ है ना, उतना कहीं नहीं फंसा हुआ। लेकिन अब फंस गए हो तो आप लिखते रहो बीच बीच में, लेकिन एक काम है, लिखना बंद मत करो, ईमेल ये करते रहो। मैं एक देखो, इससे 8-10 साल में जो फर्क आया है ना, एक ही फर्क आया है कि अगर आप बिना किसी जुगाड़ के या बिना किसी जैक के सिंपल आप लिख रहे हो ना, तो काम होता है, ये मैंने देखा है। जी, वो तो छोड़ो मत, वो सब तो कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर आप उसके पीछे भागोगे तो आपका धंधा नष्ट होगा। जी, तो सबसे बड़ी चीज तो उसके पैसे कहाँ वसूलो, सबसे पहले तो उससे सबक लो कि भाई ये काम तो ऐसे नहीं करना, ठीक। ये सबसे पहली चीज तो ये, इससे आप करोड़ों रुपए बचा लोगे।
हाँ दूसरा आगे के तो काम, बचा ही नहीं। कम्युनिकेशन जारी रखो, एक रूटीन बना लो कि यार इसको 15 दिन में एक ईमेल करनी है, कॉपी टू एवरीबॉडी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे चेयरमैन, मतलब जितने जी के ईमेल आईडी मिल जाए ना सब पे डालो। जी 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 कई बार क्या होता है, ऐसा होता है ना, जो किसी मूड पे अच्छे बैठा होता है चेयरमैन, वो कहता है यार ये 15 मेल आ चुकी है इसकी, करते क्यों नहीं हो यार इसका काम, 2 लाख रुपए देने हैं इसके, तुम्हारे लिए क्या है ये, उस समय में झटके में आपका काम हो जाएगा। बिलीव में ऐसा होता है। ठीक तो है। आप टाइम खराब करोगे अगर आप इन चक्करों में लगोगे। तो ये आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं, ट्राइड एंड टेस्टेड। जी 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 सबसे पहले उन गलतियों से सबक सीखो, इससे क्या होगा, वो इनडायरेक्टली रिकवर हो जाएगा। दूसरा, उससे कम्युनिकेशन जारी रखो, छोड़ मत दो। जी ठीक है, कम से कम ये ठीक है तो सर। कहोगे कि यार मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको अदानी की किसी कंपनी से पैसे लेने हैं, तो आप कम से हाँ कम जी कह तो सकते हो कि अदानी वैसे इतना बड़ा बनता है, मेरे को उससे 2 लाख रुपए लेने। सही ठीक है, कह रहे हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। Yes, ये sir. मैं आपको बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें बता रहा हूँ। मतलब हो सकता है जी, जी, 6 जी। महीने लगे, साल भर लगे, लेकिन पैसे जरूर आ जाएंगे। जी 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 वो तो मैं फॉलो कर रहा हूँ सर इसका। मतलब मोहन जहाँ जी मदद आपको, लगे आवाज करो, मैं हाजिर हूँ। ठीक है सर, ठीक। थैंक मतलब यू सर, मोहन जी आपको ना, थैंक यू आपको भाई। 3 पार्ट में मोहन जी बांट लेना होगा। एक तो आपने अपने पार्ट पे कि आप किसको जी दे जी रहे हो, क्या दे रहे हो, कैसे आएगा, नंबर 1। नंबर 2, फॉलो अप का लेवल रखो। और तीसरा, जो सर ने बताया समाधान वाला, उसको रखिए। और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिखाने के लिए लेने की जरूरत नहीं, उसके बड़े सारे फायदे हैं, तो उसको ज्यादा हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी 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 करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील जी, Now, today we have covered 2 powerful sessions today, both aimed at strengthening MSME financially. To conclude this webinar, I would like to invite Dr. L.K. Pandey for formally for their motivational speech or concluding remarks. Mr. Pandey, please join us. थैंक यू अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच। तो आज मुझे समझ में आ गया कि आई एम ए वेरी गुड लिसनर और आई एम ए गुड स्कॉलर। तो आप लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, थैंक यू सो मच। और मेरे जो समझ में आया सर, चूंकि हम लोग उस फेज से गुजरे हुए हैं, स्टार्टअप के एमएसएमई और जो ये जर्नी रही है, मुझे आज भी लगता है कि कई बार हम लोग इसमें फंस जाते हैं कि हम बड़ी कंपनीज का नकल करने लगते हैं और खर्चे और सारे चीजें हम बढ़ा लेते हैं, बट हम उस लायक होते नहीं हैं। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक जो स्टार्टअप डीएनए है, उसको हमेशा अपने ध्यान में रखिए। कहते हैं ना कि स्टार्टअप में खुद ही हर काम कर रहा है, अकेले बहुत सारे काम करता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, मल्टी स्किलिंग, मून लाइटिंग, ये सब करो तो पैसा भी आएगा और की बात है। बिजनेस अगर कास्ट कंट्रोल स्टार्ट से नहीं है, हम लोगों ने हमेशा देखा कि जो टॉप लाइन, बॉटम लाइन और बिजनेस नहीं होगा, एक जो वेस्ट लाइन है, मिडिल लाइन जिसको बोलते हैं, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग टॉप लाइन पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो प्रैक्टिकल मेरी नजर में आया कि कई बार अगर 2 रुपए भी कोई प्रोडक्ट आपको लॉस दे रहा है अननोइंगली, तो आप जितना बिजनेस करेंगे उतना लॉस आपका और मल्टीप्लाई करता जाएगा। गुप्ता जी का 80-20 वाला जो फार्मूला रहा है, आपने बोला गुप्ता साहब ने, सो दैट इज द गोल्डन रूल। और ये 80-20, चाहे आप प्रोडक्ट रेशनलाइज करना हो, चाहे स्टाफ रेशनलाइज करना हो, चाहे अपने चैनल पार्टनर को रेशनलाइज करना हो, तो या टाइम या रिसोर्स मैनेजमेंट, हर चीज में 80-20 के मतलब हमारे बिजनेस के लिए एक गोल्डन रूल है। और शायद हम लोग ज्यादा फोकस कर पाते हैं अगर 80-20 को शुरू से और हर चीज में ध्यान में हम लोग रखते हैं। बाकी मैं जो कास्ट कटिंग या कास्ट कंट्रोल की बात हो रही है या कास्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट। ये रुपए के रूप में बहुत कम खर्चा होता है, ये ज्यादातर आपका रिसोर्स या तो महंगा पड़ रहा है, या आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, या वेस्ट हो जा रहा है, या इन्वेंट्री में पड़े पड़े खराब हो रहा है। और एक और बात है कि जो हम स्टाफ का
कई बार अपना जो टीम है, टीम को कैसे हम लोग एजुकेट करें। सो एक थंब रूल हमने देखा है जो बड़ा प्रैक्टिकल होता है। आजकल हम लोग यूज करते हैं ROI। सो स्टाफ कई बार बोलता है साहब बेंगलोर चला जाऊं क्या, बॉम्बे चला जाऊं क्या, दुबई चला जाऊं, तो हम लोग यही कहते हैं भाई यू चेक योर ROI कि आपकी किसी डिसीजन पे ROI आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कितना बन रहा है। सो आई थिंक ऐसी चीजें जो हम लोग अपने एक एटीट्यूड की बात करें या माइंडसेट की बात गुप्ता साहब बोल रहे थे, सो आई थिंक ऐसे ऐसे 2-4 फार्मूले हम लोग उनको रेगुलर प्रैक्टिस में रहे कि रिचुअली लोग फॉलो करेंगे। भाई कोई भी डिसीजन लेना है, बिजनेस डिसीजन, सो हम लोग इसको करें। एक बड़ा चीज आता है कि कोविड में हम लोगों ने जो काफी कुछ सीखा है, हमें पता लगा कि हम लोग कितना एक्सपेंसेस फिजूल में करते हैं और जो अवॉइड किया जा सकता है उसको भी हम कितना ज्यादा कर रहे थे। और कोविड में हमने उससे ज्यादा बेहतर काम किया उन सारे खर्चों को अवॉइड करके भी। जैसे कम्युनिकेशन एंड कम्यूटेशन, ये दोनों चीजें जो है ना, कम्यूटेशन पे पर्टिकुलरली ये सबसे ज्यादा खर्चा खाता है कारपोरेट में। छोटी सी बात है, 1 घंटे की मीटिंग करनी होती है, आधे घंटे की मीटिंग, बिजनेस प्लानिंग की मीटिंग हो रही है, कहाँ होना है, हमने गोवा में करना है, हमने बैंकॉक में करना है, हमने क्रूज पे करना है। एंड बिलीव मी, यही कंपनियां जैसे अभी फिर रिसेशन का हो सकता है, खुदा न करे मतलब इस तरह की चीज आवे, फिर आएगा, फिर आप देखिएगा फिर यही पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब रेनी डेज के लिए जो चीज हमें बचा के रखना चाहिए, वो सनी डेज में हम लोग अक्सर उसको एंटरटेनमेंट में यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। फिर हम लोग अपने बिजनेस में रिस्क नहीं कवर कर रहे हैं। बजटिंग एंड प्लानिंग का बात जो सर ने बोला, दैट इज अगेन ए गोल्डन रूल कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने कौड़ियां कमानी है, कितने कौड़ियां खर्च करनी है, कितनी बचनी है। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो बेसिक प्रिंसिपल हैं। और एक और बड़ा चीज जो मेरा तजुर्बा है बिजनेस में, आप एज ए ओनर कभी बड़े बड़े सरप्राइजेज पे हैप्पी मत होइए। आपकी टीम, मार्केटिंग टीम लेके आती, साहब बहुत बड़ा धंधा लेके आ गया, या अगर आपकी टीम ने 4 करोड़ का बिजनेस का टारगेट दिया है और आपको 10 करोड़ का बिजनेस करके देता है, आप यकीन मानिए आपको ट्रबल में ला रहा है। एंड दैट CEO, दैट काइंड ऑफ बिजनेस हेड must be ask questions, and asking question, that is again a golden rule। हम लोग हर चीज में जितने सवाल रूटीन वे में आपस में करते रहेंगे, शायद हम लोग एक दूसरे को बचाते चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है काफी डिस्कस भी हो गई हैं और इतना बढ़िया लगा मुझे। कई बार तो मुझे ये होता कि रस होता कि हम पहले आपसे क्यों नहीं मिले, तो शायद हमें और समझ आ गया होता। तो बेटर है देर आए दुरुस्त आए, अब भी जीवन बच जाए हम लोगों का आपके वजह से, तो बहुत बढ़िया चीज है। थैंक यू सो मच। एंड इस तरह का प्रोग्राम करते रहे, मुझे लगता है हमारे पूरे MSME फ्रेटर्निटी को इससे बहुत फायदा होगा। सब सीखने के लिए बहुत कुछ है अभी। यकीन मानिए हमें शायद लगता है कि हम लोग को 10% का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी हम बड़े बड़े रिस्क लेके बिजनेस कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू सच काइंड ऑफ टैलेंट अवेलेबल, जो कि हमारे लिए एक्सेसिबल है आप लोग और हमारे जैसे तमाम लोग हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सपर्ट का काम करने दीजिए सर। और अगर आप इसी चीज को मान जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से आप समय से पहले बच जाएंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir, for your inspiration and motivational words. It means a lot for us. Now time for the formally vote of thanks. But before that, I would share our expectations from all the participants. May I? The participants allow